Dear students, today I am ready to teach you the poem The Road Not Taken. The Road Not Taken. This poem has been written by Robert Frost. First of all, we should know something about the poet and the introduction of the poem. Means what is the theme of the poem, subject of the poem. Before the study of the explanation of this poem, we should know. So this poem has been composed by Robert Frost. Introduction. This poem has been composed by Robert Frost. He was an American poet. Means he was a poet of America. He was an American poet. He is famous in literature, in American literature. He is famous for depiction, chitran of realistic rural life. He is famous, well known. He is famous means well known, reputed for the depiction. Depiction means chitran. Of realistic rural life. This is very remarkable information about the poet. In American literature, he is famous, वो प्रसिद्ध हैं. और किसके लिए? फॉर द डिपिक्शन माने चित्रण के लिए. और किसके चित्रण के लिए? ऑफ रियलिस्टिक, यथार्थ, वास्तविक. रूरल लाइफ मीन्स पेस्टोरल लाइफ. पेस्टोरल, PASTORAL, पेस्टोरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के चित्रण के लिए वो बहुत लोकप्रिय है.
This poem, The Road Not Taken, was first published in 1916. This poem was first published when in 1916. 1916 में ये सबसे पहली बार ये कविता प्रकाशित हुई थी. This poem is based on our decision for a choice. This is the main theme of this poem. First of all, I write this information. This poem is based on our decision for a choice. In the life which we live, sometimes many choices present before us, and at that time we have a great problem for making a decision for a good choice. जो जीवन हम लोग जीते हैं ना, उसमें कभी कभार ऐसे मौके आ जाते हैं जब ढेर सारी चॉइसेस हमारे सामने होती हैं, विकल्प होते हैं. तो कौन से विकल्प को हम चुनें, इसका निर्णय लेना बड़ा कठिन होता है. Really, it is a very great problem before us at that time when many choices come before us. So this poem is based on our decision for a choice. एक choice के लिए हमारा जो decision है, हमारा जो निर्णय है, वो एक चॉइस के प्रति कैसे हो, इसके बारे में ये कविता आधारित है. It means we have many options, choices in our lives. हमारे जीवनों में बहुत से choices होते हैं, बहुत से options होते हैं to do something. Something means in any aspect of life. किसी भी जीवन के पहलू पर बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं कभी कभार हमारे जीवन. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, I say again and again because this is the basic theme of this poem. Many choices sometimes come before us. It is a great problem for us to take one decision for the right choice. It
depends on us. Which path we choose. It depends on us, ये हम पर डिपेंड करता है कि कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। हमें ऐसा रास्ता चुनना चाहिए। We should choose such a path of life which in future will give us positive results, means progressive life, जो हमें प्रोग्रेसिव लाइफ दे, ऐसा हमें ऑप्शन चुनना है। The main theme of the poem is that life is full of choices. हमारा जीवन ऑप्शंस से भरा हुआ है। The main theme of the poem that our lives, हमारे जीवन are full of choices. Which will define our future. द मेन थीम, जो प्रधान कथानक है इस कविता का, द मेन थीम ऑफ द पोइम इज दैट कि हमारा जीवन चॉइसेस से भरा है और वो चॉइसेस जिनमें से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है, विल डिफाइन आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा। तो वी मस्ट बी अलर्ट, हमें अलर्ट होना चाहिए। वी मस्ट बी कॉन्शियस, ईगर, हमें उत्सुक होना चाहिए। About a perfect or right choice among those choices, उन choices में से किसी एक परफेक्ट चॉइस के लिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। So when your life gives us choices, so when your means जब कभी our life, हमारा जीवन gives us, हमें देता है, क्या देता है? choices,
हमें क्या देता है? चॉइसेस। हमें चॉइसेस देता है, अनेक ऑप्शंस देता है। तो उस समय हमें क्या करना है? वी मस्ट मेक क्या? द डिसीजन। हमें डिसीजन लेना चाहिए। और कैसे? वाइजली, बड़ी बुद्धिमत्ता से हमें निर्णय लेना चाहिए। He also, the poet also says, or he also says, वो ये भी कहता है that the decision must be taken freely, without fearing बिना भय के its results। sometimes, कभी कभार हम परिणाम के जो रिजल्ट्स हैं उनके डर की वजह से भयभीत होकर नकारात्मक हो जाते हैं। We become negative by the fear of the results of our decision। अपने निर्णयों के, जो हमने निर्णय लिया है उसके भय से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, जिसके कारण हम नकारात्मक निर्णय ले लेते हैं। And that decision kills our future, destroys our future। हमारे भाग्य को वो बर्बाद कर देता है वो निर्णय। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम एंड द पोइट टेक द screenshot of this introduction। I give you only 5 seconds। This is the first stanza of this poem। This is the text of this poem and this is the first stanza। Let us read and understand the first stanza। आओ समझें इसको। पहले हम first of all we will understand the meaning of this stanza and after that its explanation। Two roads diverged in a yellow wood। दो रास्ते, येलो कहते हैं पीले रंग को। डाइवर्ज मीन्स होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जाना, डिसलॉज हो जाना। डाइवर्जन आपने देखा होगा रास्तों में लिखे हुए। तो दो रास्ते जंगल में
कैसे जंगल में? पीले जंगल में क्या हो जाते हैं? पास्ट में लिखी है, प्रेजेंट में हम लोग पहले समझते हैं इसको। डाइवर्स्ड मीन्स डाइवर्जेस मीन्स डिसलॉजेस, भिन्न भिन्न दिशाओं में छितर जाते हैं। रास्ते में जा रहा है कवि और अचानक दो रास्ते उसके सामने आ जाते हैं, वही टू चॉइसेस आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है कि हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन किसी मोड़ पर ऐसा होता है कि हमारे सामने दो विकल्प आ जाते हैं। तो व्हाट डज इट मीन इन इंग्लिश? इन हिंदी, दो रास्ते पीले जंगल में भिन्न भिन्न दिशाओं में छितर जाते हैं। ये इसका हिंदी में अनुवाद हुआ इस लाइन का। अब इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या हुई? इन द येलो फॉरेस्ट, पीले जंगल में। पीला जंगल इसलिए कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन में आई विल एक्सप्लेन व्हाई इज हियर येलो फॉरेस्ट। यहाँ पर येलो फॉरेस्ट क्यों है? इसलिए कहा गया है कि वो जो जंगल है, वो उसमें जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, दे हैव येलो लीव्स, पीले रंग की पत्तियां हैं। इट शोज दैट इट इज द सीजन ऑफ फॉल, ऑटम। ये पतझड़ का मौसम है। तो सीजन कौन सा बता दिया? येलो फॉरेस्ट कहकर वुड कहकर पतझड़ का मौसम है, इसलिए येलो वुड कहा जा रहा है। तो इन द येलो फॉरेस्ट टू पाथ्स मूव or extend in different direction from a common point where the poet reaches। जहाँ पर कवि पहुँचता है वहाँ से दो रास्ते अचानक आ जाते हैं। सेकेंड लाइन, and sorry I could not travel both। और I का मतलब here poet, और मैं दुखित हूँ। Who is sorry? The poet is sad। Sorry means sad, दुखी है। मैं दोनों रास्तों में यात्रा नहीं कर सकता था, लेकिन हमने कहा पहले हम प्रेजेंट में समझेंगे। We will understand this thing if anything is universal। यदि कोई भी बात यूनिवर्सल अपील से जुड़ी है, सार्वभौमिक आग्रह करती है, तो दैट मस्ट बी अंडरस्टूड इन प्रेजेंट टेंस। उसे प्रेजेंट टेंस में समझना चाहिए। कभी नहीं कहा जाएगा वर्क वाज वर्शिप, कर्म ही पूजा थी, कभी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कर्म पूजा न रहे, हमेशा रहेगा। तो अगर कोई यूनिवर्सल अपील, यूनिवर्सल आग्रह, सार्वभौमिक आग्रह कोई चीज़, कोई बात करती है, इफ एनी स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन अपील्स यूनिवर्सली, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट अपील इन प्रेजेंट, बिकॉज इट इज एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी माने अनुकरणीय है। तो द पॉइंट इज सैड, और कह क्या रहा है? आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था और हियर कर सकता हूँ। भाई दो रास्ते आ गए तो दोनों में तो नहीं चल सकता, वो किसी एक ही रास्ते पर चलना होगा। दो विकल्प हमारे जीवन में आ गए तो दोनों को तो नहीं हमें लेना है। जैसे after intermediate 10+2 the students have many choices for their career। उनके करियर की बहुत सी चॉइसेस होती हैं।
तो उनमें से किसी एक ही को चुनना होता है उसको, कई तो एक साथ नहीं कर सकते। कहा भी जाता है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुलसी सींचे मूल को तो फूले फले गाय। पेड़ की जड़ को अगर सींचा जाता है तो सब कुछ देता है, फूल भी देता है, फल भी देता है, और गाय तृप्ति भी देता है जड़ को सींचने से। और पेड़ की पत्तियों को सींच रहे हो, फूलों को सींच रहे हो, फलों को सींच रहे हो, मूल को सींच नहीं रहे हो। तो हरा भरा उसे करना है तो मूल को करो ना। तो वैसे ही हमें भी ढेर सारे जो ऑप्शंस हमारी लाइफ में आ जाते हैं, तो उनमें से वो चूज करो जो बेसिक है, जिससे ढेर सारे विकल्प निकल कर सामने आएंगे, या विकल्प कह रहे हैं परिणाम सामने आएंगे जो हमारे लिए प्रोग्रेसिव होंगे। ऐसा विकल्प चुनना चाहिए। तो द पॉइंट इज सैड, कवि दुखी है, दैट ही कैन नॉट ट्रेवल इन बोथ पाथ्स, वो दोनों रास्तों पर नहीं ट्रेवल कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक पर्यटक बनकर, पर्यटक तो वो एक ही है, सिंगल है। लॉन्ग आई स्टूड, आई फॉर पॉइंट, बहुत लंबे समय तक वो खड़ा रहता है, विचार करने लगता है। और यहाँ लॉन्ग ट्रेवलर इसलिए कहा गया है कि हर एक की जीवन की यात्रा की दूरी किसी को मालूम नहीं है। None knows the last point of his life or her life, अपने जीवन के अंतिम बिंदु को कोई नहीं जानता है। तो all the people here are long travelers, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब लंबी दूरी वाले हैं। कब तक भाई मालूम नहीं है। तो एक लंबी दूरी का ट्रेवलर बनकर कवि सोचने लगता है, और हर एक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए। एवरी पर्सन मस्ट थिंक सच एज द पोएट इज थिंकिंग, जैसा कवि सोच रहा है वैसे सभी को सोचना चाहिए। फिर क्या करता है, इसका इंग्लिश में क्या होगा? Being a traveler, a long traveler, he stands for long time, लंबे समय तक सोचता, माने इत्मीनान से सोचना चाहिए। For the right choice of the path, उस रास्ते की right choice को, right alternate को, right option को बहुत लंबे समय तक विचार करना चाहिए। इतना भी लंबा समय नहीं कि आधी जिंदगी सोचने में ही गुजार दी। उसका भी एक समय निश्चित है कि कहीं वो ऑप्शंस ही न चले जाएं। जब पढ़ाई की उम्र आई तब खेलते रहे, और जब सीरियस हुए तो पढ़ाई की उम्र चली गई, तो ऑप्शंस ही खत्म हो गए। टू वेयर इट बेंट, looked down one as far as I could. कवि कहता है कि looked down means he keeps looking at the path, वो ऑप्शन को अर्थात रास्ते को देखता रहता है, उस पर विचार करता रहता है। और यहाँ पर जब शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो वो एक रास्ते को बहुत देखता रहता है, उतनी दूर तक जितनी दूर तक वो देख सकता है। लिमिट है, किसी भी विकल्प को सोचने की एक लिमिट है, वहां तक तो सोचो। जल्दबाजी में कोई काम मत करो, इत्मीनान से सोचो। तभी 10+2 जब हम पास करते हैं तो अप्रैल में रिजल्ट आता है, मई जून 2 महीने मिले, पर्याप्त समय है सोचने के लिए क्या करना है। मैनी ऑप्शंस हैं तुम्हारे सामने,
तो उनमें से एक को सिलेक्ट करो और उसके अंत तक विचार करो, उसकी प्रॉब्लम्स पर विचार करो, कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार करो, रिजल्ट्स पर विचार करो, अपने वेलर, अपने पराक्रम पर भी विचार करो कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस रास्ते पर हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ये सब सोचने वाले। और वहां तक वो देखता है, मीन्स ही कीप्स ऑन लुकिंग एट द पाथ एज फार एज ही कैन। वहां तक देखता है जहां तक वो देख सकता है, मीन्स वहां तक सोचने का प्रयास हमें करना चाहिए जहां तक हम सोच सकते हैं। To where it bent. In the undergrowth. Undergrowth means forest. Dense forest को कहते हैं, घने जंगल को। He keeps, वो वहां तक जहां से घने जंगल से वह रास्ता घूम गया है। Bend means बेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बेंड। घूम गया है, जहाँ से वो रास्ता घूम गया है, मतलब जहाँ तक वो दिखाई दे रहा है, जहाँ तक हमारी सोच जा रही है, तहाँ तक तो हमें सोचना ही चाहिए। और जहाँ से वो घने जंगलों के बीच से गुजर गया है रास्ता, जहाँ तक हमारी निगाह नहीं जा पा रही है, उसके आगे हमें विचार नहीं करना है। जहाँ तक हमारी सोच नहीं पहुँच पा रही है, उस पर नहीं सोचना है। तो दिस इज द हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस गिवन स्टेंजा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टेंजा। The explanation of this poem will be done or will be explained in past, because the poet has written this poem in past tense. Once the poet was walking down a road, and then there was a diversion. There were two different paths, and he had to choose one out of them. The poet says, as he was a one person, चूंकि वो एक व्यक्ति था, he could travel on one road only. He had to choose one out of these two roads. Yellow wood means a forest with leaves which are wearing out, and they have turned yellow in color. It shows that it is the season of fall. It represents, means this thing, this information which the poet has given in this poem, in the first stanza. It represents a world, WRLD, which is full of people, जो लोगों से भरा है, where we have been living for many years. The condition of the poet, माने जो कवि की दशा है in this situation, happens in our lives, हमारे जीवन में भी घटती है, when we have to choose only one out of many choices. We take time to think about the consequences, means the results of them.
क्यों? whether it is suitable for us or not, for this consequence, कि जो रास्ता हम चुनने जा रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है. We take time or we should take time. हमें समय लेना चाहिए. And only then we take a decision formally on what path we should choose. जिस रास्ते को हमें चुनना चाहिए. We take or we should take a decision, a firm decision, so that we can get better future. I will send you the explanation of the second, third and fourth stanza through PDF. Thank you very much for watching this video. God bless you.